नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप बांबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं इस वक्त नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। So Pradeep ji, the Prime Minister Mr. Narendra Modi is on a temple run. बिल्कुल सर। All over the place. He's going from one temple to the other. Yes, yes. And today he was at the Valinath temple in Mehsana and Gujarat. बिल्कुल बिल्कुल सर। प्राण प्रतिष्ठा आज भी करी उन्होंने। भैया देखो प्रदीप जी, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, फिर उसके बाद अबू धाबी में प्राण प्रतिष्ठा, Yes, yes, और yes. अब मेहसाना में प्राण प्रतिष्ठा। क्या बात है साहब, वंडरफुल। बोले was reminding अयोध्या में यही दिन मैं कर दिया था और मेहसाना में now the same one month earlier. Fantastic, absolutely fantastic. This is really and truly wonderful, and today is a very very auspicious day as well. But I hope it continues. In terms of, this is the first Prime Minister who is not ashamed of being a Hindu. Number one. Number two, he is proud of being a Hindu, does not hide his religion. And number three, who has started to give temples the importance that they deserve. बहुत सालों से हम लोग यहाँ पर ना जाने कब से बात कर रहे हैं कि हमारे जो मंदिर हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उन सबको निगलेक्ट किया गया है. This is the first government really which has woken up to that fact. You yourself, Pradeep ji, when you had gone to Kerala, you said there are over 200 Lord Shiva temples. शिवालय हैं, शिव जी के मंदिर हैं जो टीपू सुल्तान ने तोड़े थे, वो अभी तक वैसे के वैसी स्टेट में हैं. And they need to be repaired, they need to be restored. But this is the first Prime Minister actually to take this at a very 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 personal level. Pradeep ji. बिल्कुल सर, the old temples all across need to be, and they are 500 साल, 1000 साल, ये just left just immediately इस प्रकार से. And this is the Prime Minister has reiterated. आज जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये सोमनाथ के लिए जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी हुआ, सोमनाथ के लिए कंट्रोवर्सी हुआ, पावागढ़ के लिए धर्म ध्वज लहराने के लिए जो कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहा है, मोढेरा सन टेम्पल उसके लिए लिंक, वोट बैंक को लिंक करके मोढेरा टेम्पल को जिस प्रकार से आलोचना, और भगवान राम को जिस प्रकार से कुछ लोगों ने काल्पनिक बताया. नाउ मोदी जी ने एक चीज है, इस चीज को प्रमोट भी कर रहा है, एट द सेम टाइम उस चीज को हाईलाइट भी कर रहा है कि क्यों आज तक ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गया था. वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से किस प्रकार से ये एक फेस था, उसको टोटली निग्लेक्ट किया गया, व्हिच दे शुड हैव प्रमोटेड, बिकॉज़ दैट्स व्हाट भव्य राम मंदिर जब बना, दैट्स व्हाट ही सेड, एंड ही वर्कड सो हार्ड टुवर्ड्स इट. एंड इट इज वन थिंग वेरी क्लियर, no Prime Minister Modi, there would be no resurgence of the Punarnirman of the Ram temple. It was his own initiative, and the initiative. RSS कब से सोच रहे राम मंदिर, पूरे देश सोच रहा था राम मंदिर, but every time it was getting delayed for, we can say centuries, delayed for centuries, until 496 years. Yes. And now it's done. But Amit Shah says 550 years. Yeah. I don't know what is the calculation, but he does it. He dates it, I think, from 1526. The day Babur came. And 1528. Yeah, from the day when Babur came and the first battle of Panipat was fought. Yes. I think he dates it from that day. बिल्कुल सर. So उनका कैलकुलेशन है कि तब तो प्लान करके आए थे कि इतने मंदिर तोड़ेंगे. जी, correct. But anyway, it's happening, and I for one am very very happy, because you know, up till now most prime ministers in India have been very squeamish about their religion. अरे भाई, आप हिंदू हैं तो हिंदू हैं, अगर आप ईसाई हैं तो ईसाई हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सर. Secularism does not mean, even though a secular government in the strictest sense of its definition means absence of religion. In India, it means respect for all religions. That's it. So I remember Ram Jethmalani all the time, your old friend, used to appear in most of your shows. Ram Jethmalani, really, इस देश में हिंदुत्व के बात करना is communalism. I mean, इसको आप ब्रांड कर रहे हो, आप सेक्युलर नहीं है. मतलब आप इस्लाम के बारे में बात करेंगे, सिखों के बारे में बात करेंगे, जैनियों के बारे में बात करेंगे, बौद्धों के बारे में बात करेंगे, यहूदियों के बारे में बात करेंगे, पारसियों के बारे में बात करेंगे, तो आप सेक्युलर हैं. You're secular. बट हिंदुत्व के बात करेंगे, हिंदुओं के बारे में बात करेंगे, तो मतलब आप सांप्रदायिक हैं साहब. सांप्रदायिक, टोटल. जी. You're spreading the hatred of communalism,
आप ये नहीं कर सकते, ये सेक्युलर वैल्यूज पे क्वेश्चन लग जाता है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट and when you talk about secular state you are talking about Hindutva and that's wrong. Let's go across to our old friend Mr. Mukesh Gandhi who's with us right now. Mukesh Gandhi साहब नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम सर, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। लवली टू हैव यू इन आवर ऑफिस। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप हमारे ऑफिस में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने हमें लड्डू भी खिलाए, हमारा मुंह भी मीठा कराया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत। और एक और चीज है, क्योंकि आज माघ शुक्ल पक्ष जो है वो उसकी त्रयोदशी शुरू हुई कल 21 फरवरी को, और आज अभी कोई 1 घंटे के बाद खत्म होगी। तो यू हैव कम एट अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम इन स्टूडियो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज विश्वकर्मा जयंती भी है, विश्वकर्मा जयंती है, और प्रधानमंत्री मोदी जी एक नई विश्वकर्मा योजना लेकर के आए हैं हमारे जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों के लिए। सो आई थिंक that adds an added flavor to it। और जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के नए भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूजा हुई, और आज 22 फरवरी को महसाना में वालीनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं कि ये मोदी जी तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा पूजा में वो शरीक हो रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं सर आप? नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से मंदिरों का जीर्णोद्धार करा के हमारे हिंदू धर्म को एक नया आयाम दे रहे हैं, एक नई परिभाषा दे रहे हैं, इनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बाबत में मैं एक ही बात कहूंगा कि उनके जीवन में 2-3 बातें बहुत अहम है। एक आत्मविश्वास, दूसरा प्रभु विश्वास, और साथ में आयोजन और काम पूरे करने की कटिबद्धता। ये कारणों के साथ वो अपना व्यक्तित्व जैसा देखते हैं, सोचते हैं, वैसा समाज में जाके करते हैं। आज हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान, आज सालों से अलग अलग आक्रमणों से पीड़ित होकर के हमारी एक गरिमा खो बैठा था। वो गरिमा को मंदिरों के माध्यम से, सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से, उत्सवों के माध्यम से और हमारे शास्त्रों के माध्यम से इन सभी का पुनरुत्थान करने का काम और नवनिर्माण का काम जो मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने कभी भी, आपने भी देखा होगा, हम सबने देखा है कि कभी उन्होंने दूसरे धर्म के बारे में क्रिटिसिज्म नहीं की है। विवेकानंद जी कहते थे ना कि तुमको दूसरे की एक रेखा को कम करना है तो उसके ऊपर एक बड़ी रेखा आप ड्रॉ कर लो, और वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आज हिंदुस्तान के अंदर जितने मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है उससे सिर्फ मंदिरों में आस्था बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, इतना ही नहीं है, पर लाखों लोगों को नई रोजी रोटी मिलती है, व्यवसाय मिलता है। और हमारा हिंदुस्तान जो है ना, वो एक प्रकार से आप कहो ना तो रिलीजियस टूरिज्म के लिए विश्व में मान्य हो जाएगा। और राम मंदिर की भव्यता, मथुरा के मंदिर की महत्ता और काशी विश्वेश्वर की महत्ता, ये जितनी बढ़ेगी, और हमारे 4 तीर्थ धाम जो है, हमारे 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, ये सारे हमारे जब जितने बढ़ेंगे उतना आप देखना कि लोगों के अंदर धर्म के प्रति सच्ची आस्था बढ़ेगी। अब जरूरत यह है कि धर्म की व्याख्या ये है कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जो ऐहिक और पारलौकिक उत्कर्ष के लिए कारणभूत हो वो धर्म होना चाहिए जी। आज जो भ्रांत ईश्वरवाद चल रहा है, इल्यूजन रिलीजन चल रहा है, गॉड फियरिंग मेंटालिटी से हम भगवान के पास जाते हैं, वो हम सबको छोड़ के हमारा यह जीवन जो है इसको सुखी, समृद्ध, शांत बनाना है। और साथ में हमारा जो पुनर्जन्म बाद में होगा मृत्यु के बाद, वो जीवन को भी अलौकिक बनाने की हमें तैयारी करनी है।
ये बताने वाला हमारा धर्म है। और धर्म के बारे में आप 3 बातें हम ध्यान में रखें कि धर्म का मतलब क्या है। वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ वर्शिप। आज हमारा सनातन धर्म है ना, इनके पास ये तीनों बातें हैं। वे ऑफ लाइफ भी है, वे ऑफ थिंकिंग भी है और वे ऑफ वर्शिप भी है। अब वर्शिप के अंदर हिंदू के बाद में मुसलमान, क्रिस्त और कई जो अलग अलग संप्रदाय के जो लोग हैं उनकी वर्शिप पूजा अलग रहेगी, पर वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ थिंकिंग अगर एक करेंगे हम लोग कॉमन सिविल कोड के माध्यम से और हमारे भारतीय परंपरा के विचारों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में कभी भी कम्युनल रायट भी नहीं होगा। वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग हमको बहुत बहुत परफेक्ट करनी चाहिए, तो वे ऑफ वर्शिप पे झगड़ा नहीं होगा। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर हमारे देश में 1000 धर्म भी हो, पर अगर everybody if knows the philosophy of religion, then they will not fight for the cause of the religion. Yes, but as you quoted Swami Vivekananda earlier, what did Vivekananda say? Vivekananda's one of his most famous quotes is, Hinduism is the only religion in the world which believes that every religion is true. Yes. Where he says, as Sri Krishna says in the Bhagavad Gita, whichever God you worship, finally your prayer is going to come to me. That's it. Doesn't make a difference. मैया वेश्य मनोये मांग नित्य युक्ता उपासते। मेरे में आसक्त होकर मेरी भक्ति करो, मैं आपका जीर्णोद्धार करूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। ये भगवत गीता का तत्व ज्ञान है। आज आपको एक बात बताऊं राजीव जी, प्रदीप जी, कि सचमुच तो आज हमारे इतने सारे हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए हैं, पर सभी के घर में भगवद गीता का एक पुस्तक होना चाहिए और सरल भाषा में उनके ऊपर जो विनोबा जी ने, पांडुरंग शास्त्री जी ने, भक्ति वेदांता जी ने, विवेकानंद जी ने जो प्रवचन दिए, उसकी कुछ पुस्तकें भी हमारे प्रत्येक हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के घर में होनी चाहिए, क्योंकि वे ऑफ लाइफ एंड वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ वर्शिप अगर कोई दिखाता है तो वो भगवत गीता ग्रंथ है हमारा। क्या बात है, और उसका महात्म्य बढ़ना चाहिए। प्रदीप जी, आज मुकेश गांधी साहब, मोदी साहब ने नॉट ओनली प्रोमोटेड द आइडियल्स ऑफ हिंदुत्व, बट ये मंच पर उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया। बोले कि कुछ पार्टियां हर चीज में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। सोमनाथ के रिवाइवल में कंट्रोवर्सी हुआ, जो पंडित नेहरू जी ने जो किया। पवागढ़ के लिए धर्म ध्वज लहराने के लिए वहां पर भी वोट बैंक पॉलिटिक्स को बीच में लेके आके उसको नजरअंदाज किया। मोडेरा सन टेम्पल वाज लिंक्ड विद वोट बैंक पॉलिटिक्स, दैट वाज प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया। ये भी लोग ने ठुकरा दिया। पीपल राम मंदिर का पुनर्निर्माण के बाद पूरे देश में एक प्रकार से लहर है कि आवर एंशिएंट वैल्यूज हैज बीन रिस्टोर्ड एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। बोले ही इज टेकिंग पॉट शॉट्स एट द कांग्रेस क्लियरली। तो क्या, हाउ डू यू सी दैट, वाज इट नेसेसरी? मुकेश गांधी साहब, देखिए, राहुल गांधी जी के जो एंसेटर्स हैं, उन्होंने कभी भी भारतीय धर्म और संस्कृति को जाना नहीं, समझा नहीं। और नेहरू जी भी एंटी हिंदू थे, इसीलिए उन्होंने सोमनाथ मंदिर में राजगोपालाचारी को रुकवा दिया। राजेंद्र प्रसाद जी गए तो उनको मान्य नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उन्होंने विरोध किया। और तब से लेके पूरे प्रसंगों के अंदर हम देखेंगे तो आज जवाहरलाल नेहरू ने अगेंस्ट हमारे हिंदू धर्म से बहुत काम किए हैं। और उसकी दूसरी बात कि आज अंत में, पहले जो सिख धर्म जो हमारा जो पैदा हुआ तो 5 लड़के घर में होते थे, तो उसमें एक लड़का हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए सिख बनता था। तो वो सिख जो था वो हिंदू ही था, वो हिंदू का एक अंग था। पर भिंदर वाले को और ये सब करके पंजाब के अंदर कांग्रेस में इंदिरा गांधी, ये लोग ने, कांग्रेस कल्चर ने पूरा ये भिंदर वाले को ये सबको करके सिखों को हिंदुओं से अलग करवाया और आखिर में खालिस्तान की मूवमेंट खड़ी कर दी। और कर्म की थियरी के मुताबिक आप देखिए कि वहां मंदिर में गुरुद्वारा में क्या हुआ
अमृतसर में, और उन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ, और ये सब प्रपंच करने के बाद में इंदिरा गांधी जी का भी दुख से कहना चाहिए कि उनका भी देहांत हो गया, उनका भी एक सिख ने ही उनका देहांत में निमित्त बन गया। तो ये हिंदू धर्म की जो विघटनाएं का काम आज तक कांग्रेस ने किया है, तो ये राहुल गांधी बेटा क्या काम करेंगे? इनके जहन में ही कुछ बात नहीं है। ये खाली सिर्फ बोलने वाला शंख है, ये करने वाला और देने वाला शंख नहीं है। जी मुकेश गांधी साहब, यहाँ पर आने के पहले जब हम लोग अपने वो दूसरे ऑफिस में बात कर रहे थे, तब हमारी बात हो रही थी कि किस प्रकार अयोध्या में मंदिर बनने के बाद, और बहुत ही जल्द, मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है, प्रदीप जी और मैं तो ये कई बार बोल चुके हैं कि अब तो कृष्ण जन्मस्थान भी बनेगा मथुरा में, और साथ साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पे सबसे पहला, ये कहा जाता है कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ काशी में, वो स्थान भी, वहाँ पर भी काशी विश्वनाथ मंदिर बन जाएगा। आपको क्या लगता है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का प्रश्न है और पूरे देश की इकोनॉमी का प्रश्न है, रिलीजियस टूरिज्म की वजह से, पिलग्रिम्स की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देश के ऊपर और देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर? सर, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत परफेक्ट और सही है कि ये रिलीजन टूरिज्म के कारण उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 हो जाएगा। इवन साउथ से भी उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू जनरेशन बहुत बढ़ जाएगा, और उसके कारण लोगों की आस्था केंद्रों के अंदर तो वृद्धि होती है, पर साथ में पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसमें यूपी बहुत बड़ा श्रेष्ठ और नंबर 1 बन जाएगा। इसमें कोई यकीन नहीं है, कोई अविश्वास नहीं है। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अच्छा, अब अभी अगर महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं, 1 मिनट के लिए आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा कि आदरणीय सम्माननीय हमारे जरंगी पाटिल साहब अभी भी खुश नहीं है आरक्षण को लेकर के। वो कहते हैं कि दादी क्या है, हम जब तक के आरक्षण वास्तविकता में नहीं मिलेगा तब तक हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी, और हमारा जो संघर्ष है वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। सर, ये क्या हो रहा है? ऊपर से भुजबल साहब कह रहे हैं कि ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, मतलब रिजर्वेशन दे भी दिया, उसके आगे कुछ और चाहिए, वो भी दे देंगे, फिर बोलेंगे कुछ और चाहिए। ये क्या हो रहा है? मुकेश गांधी साहब जरा बताएं प्लीज, इस पर जरा रोशनी डालें। ये देखिए राजीव जी, ये जरांगे, ये किसी का प्लांटेड पिल्लू है। माफ करना, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे, मैं बहुत छोटा हूं, पर ही इज अ प्लांटेड पर्सन टू शिंदे जी की सरकार जो अभी अच्छी तरह से काम कर रही है, और बीजेपी जो सहयोग से काम कर रही है, अजीत दादा भी सहयोग से काम कर रहे हैं। ये सबको ब्रेक करने के लिए, इनको तोड़ने के लिए ये जरांगे नाम का एक व्यक्ति खड़ा किया गया है। और जरांगे मुझे तो लगता है बहुत विम्सिकल है, और विम्सिकल दिखाता है अपने आप को, इनोसेंट दिखाता है अपने आप को, पर एट द सेम टाइम उसका टारगेट फिक्स है कि उसको महाराष्ट्र की इकोनॉमी और महाराष्ट्र की ज्योग्राफी और महाराष्ट्र की सोशियोलॉजी जो है जातिवाद के ऊपर, वो सारी उसको डिस्टर्ब करके रहनी है। मराठा रिजर्वेशन माने क्या है? ये एक बाजू में मराठा रिजर्वेशन 10% उसको दिया गया, सब पास हो गया, पूरे उनके लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया, सब रेजोल्यूशन होके ओवरऑल ऑपोजिशन वालों के साथ मिलकर के शिंदे साहब ने ये पूरा पास किया। फिर बाद में उसको अभी ओबीसी में से भी कोटा चाहिए। तो ये क्या है? ओबीसी और मराठा के बीच में क्लास वॉर प्रगटाने वाली ये चिंगारी है। ये चिंगारी को कोई बुद्धिगम्य रीत से अगर शांत नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स बहुत हद तक डैमेज हो जाएगा, और उसके कारण लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ होगी, ऐसा मुझे लगता है। ये प्रदीप जी, ये कौन है जो इसके पीछे जो शक्ति है? नाम भी बता दें। पूरे हिंदुस्तान को अभी डैमेज करने के लिए कनाडा से और फॉरेन से कुछ एजेंसियां हैं जो बहुत बड़ा फंडिंग कर रही है। जिस तरह से जरांगे को यहाँ लॉन्च किया है, वैसा ही आप देखो कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो किसानों के आंदोलन में भी वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड क्या विजिबल है? आप देखिए कि उनकी 4 डिमांड है कुछ, कि एक तो उनको चाहिए एमएसपी पे कानून चाहिए, एमएसपी चाहिए। अभी एमएसपी के अंदर आप देखेंगे
तो मैं आपको फिगर देता हूं, एक मिनट सर, श्योर। कि देखिए एमएसपी में 17 लाख करोड़ रुपया जाएगा जी। दूसरा, मनरेगा में 200 दिन रोज का 700 रुपये के पकड़ के 15 करोड़ के हिसाब से 700 रुपया पकड़ेंगे तो ये 21 करोड़ रुपीस उसमें जाता है। तीसरा पॉइंट है, उनको चाहिए पेंशन 10,000 फॉर द 60 इयर्स अबव पीपल, तो उसके अंदर 1,80,000 करोड़ रुपीस जाता है। और बाद में उनको फ्री बिजली चाहिए, उसमें 21,000 करोड़ रुपया जाएगा। तो ये टोटल इनका करेंगे तो 40 करोड़ रुपीस इनको, 40 लाख करोड़ रुपीस इनको चाहिए। और जबकि हर साल का, हाँ पर ईयर, हाँ पर साल का, जब 40 लाख, तो हमारा जब हिंदुस्तान का जो एनुअल बजट है, फाइनेंस जो है वो 55 के आजू बाजू में है, तो क्या 10 लाख करोड़ में बाकी का हिंदुस्तान चलाएंगे हम? और 40 लाख करोड़ रुपीस एक किसानों को दे देंगे? क्या हमारी इकोनॉमी को चाइना, रशिया और जितनी लंका और ये जितनी कंट्री आज रिसेशन में जा रही है, उनकी तरह क्या इंडिया को डैमेज करना चाहते हैं? ये जरांगे और ये किसान आंदोलन ये पूरा प्लांटेड फॉरेन एजेंसी के है। और उसके साथ में मेरे हिसाब से सारे कांग्रेस और पुरानी एनसीपी के और सब बड़ी बड़ी पार्टियां, समाजवादी, ये सब उसके एजेंट बन करके उनके हाथ मिला के काम कर रहे हैं और मुकेश गांधी साहब का प्रयत्न करते हैं। मुकेश गांधी साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी का कहना है कि 10 साल किसानों के साथ अन्याय होगा। 10 साल मोदी जी ने किसानों को ठगा है, 2 गुना, ट्वाइस, डबल इनकम प्रॉमिस किया था। आज एमएसपी को तरसा रहे। महंगाई इस कदर बढ़ गया है कि 60% किसानों के कर्ज है और डेब्ट इंक्रीज हो गए। 30 फार्मर्स आर डाइंग एवरी डे। किसानों को न्याय कैसे देंगे जब यही लोग किसानों के रास्ते में किले बिछाकर उनको परेशान कर रहे हैं? तो इनसे न्याय का अपेक्षा करना मुश्किल है। तो ये जिस प्रकार से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक कैंपेन चलाया है कि आपने किसानों को बर्बाद कर दिया, कि ना किसानों के खिलाफ अन्याय हो गया, तो हाउ डू यू सी इट? आप इसको कैसे देखते हो? सस्टेन्ड कैंपेन है। अरे खड़गे जी को तो मैं क्या बोला, पहले एक बार मैंने आपके इंटरव्यू में बताया था, खड़गे जी नहीं है, खटके जी है, उसको सब खटकता है। राहुल गांधी बकवास करते हैं और ये हर बात में रिवर्स पॉइंट लेते हैं। 10 साल की उनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट में उन्होंने किसानों को क्या दिया, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? आज नरेंद्र मोदी जी ने यूरिया से लेके सॉइल का, ये वो सारे इश्यू जो किसानों के, उनके इंश्योरेंस का है, उनकी वाटर सप्लाई का है, उनकी खेती को समृद्ध करने का, उनका प्राइजेस का, सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। पर ये तो क्या है, घर में आई हुई नई नई बहू आएगी और वो कहेगी कि मुझे सिर्फ खाली घर खर्च के लिए पैसा दोगे उतना नहीं चलेगा, पर मुझे शॉपिंग के लिए भी पैसा चाहिए, मुझे परदेश घूमने के लिए भी पैसा चाहिए, मुझे इसके लिए भी चाहिए, मुझे सोने के दागिने, डायमंड की नेकलेस बनानी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। ऐसी डिमांड बढ़ाते जाएंगे और क्राइसिस किसको नहीं है भैया? आज हमारे हिंदुस्तान में अगर मूवमेंट करनी है ना, तो मिडिल क्लास लोगों की आज मूवमेंट करनी चाहिए। कि आज मिडिल क्लास महीने का 20-25 हजार रुपया भी कमाता नहीं है और उसमें अपना घर कैसे चलाता है? 60 साल के बाद में यही मिडिल क्लास के लोग नौकरी पर से जब रिटायर हो जाते हैं, बाद में उनकी बहुत कम आमदनी होती है, उनकी ग्रेजुइटी में से जो फंड आता है उसमें से, और ऐसे करोड़ों लोग हैं, वो कैसे जीते हैं, कैसे सरवाइव होते हैं, कैसी उनकी तकलीफें दूर होती है? इनके तो लिए आप गांधी साहब, आपने कॉन्स्पिरेसी की बात किया। यू टॉक्ड अबाउट सम कॉन्स्पिरेसी दैट इज एंड अ फॉरेन हैंड फॉर द कॉन्स्पिरेसी। आज मराठा रिजर्वेशंस में एक फूट देखने को मिला। कुछ लोग खुल के आके मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ बोलने लगे कि आप एक ही व्यक्ति के फोन उठा रहे थे, और दूसरे जो महिला लेडी है उन्होंने कहा कि आप शरद पवार जी के इंस्ट्रक्शंस पे ये सब कर रहे हो। ये आपके जितने भी काम आपने किए, वो फाइनेंस शरद पवार जी ने किए। ये संगीता वानखड़े करके हैं उनके ग्रुप के लोग, उन्होंने कहा। अनिल बारस्कर ने यह चार्ज लगाया कि आप हमेशा एक ही फोन उठाते थे और वो शरद पवार जी का। तो आज के तारीख में जिस प्रकार से मराठा रिजर्वेशंस के लोग बाहर आके खुद एक्सपोज करने लगे, बोलने लगे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अभी ये स्क्रीन में आप देख रहे हो मिसेस वानखड़े जी, संगीता वानखड़े, उन्होंने खुलेआम शरद पवार जी पे आरोप लगाया
कि पूरे फाइनेंस इस कैंपेन का पवार साहब के पास शरद पवार जी कर रहे थे, तो क्या ये आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में खुल के आएंगे? आपको कैसा लग रहा है? हक तो दे दिया आपने, 10% डिक्लेयर कर दिया मराठा रिजर्वेशन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, अभी तक जरांगे पाटिल संतुष्ट नहीं है। मुझे तो लगता है प्रदीप जी कि 15 दिन में जरांगे इतना एक्सपोज हो जाएगा कि उसको लोग मारने के लिए जाएंगे, मराठा लोग ही। क्योंकि देखो, किसी का बनाया हुआ कोई फैब्रिकेटेड गैस भर के हम किसी को एक प्लास्टिक का जो बाउल आता है उसको बड़ा 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 करके करेंगे और ज्यादा गैस भरेंगे तो एक लेवल पे वो बस्ट हो जाएगा। ऐसा है, बस्ट होने वाला जरांगे है। और ये जो हमारी बहन ने जो भी आक्षेप लगाए हैं वो ग्रास रूट पे काम करने वाले होते हैं, तो उनके पास बहुत डिटेल होती है। मेरे पास तो वो अथॉरिटी नहीं है और मेरा उसके ऊपर कोई स्टडी और रिसर्च नहीं है। पर एक बात है कि शरद पवार साहब को जो रचनात्मक काम करना चाहिए था वो उन्होंने अपने काल में थोड़ा थोड़ा किया, पर आज जब से उनको अजीत पवार ने उनका साथ छोड़ दिया और एक नई एनसीपी हमारी पूर्ण फिर से एस्टैब्लिश हुई है, शिंदे गवर्नमेंट अभी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, तब ये शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे ये दोनों मिलके इस तरह से महाराष्ट्र की इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को बहुत मलिन करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, और उसमें वो सक्सेस नहीं होंगे और फेल हो जाएंगे। और एक बात मैं फिर से कहता हूं कि जरांगे का ये सारा जो दिखावा है, जो नाटकीपना है, जिस तरह से केजरीवाल ने उधर रामलीला मैदान में बड़ा बड़ा उपवास करके अन्ना साहेब हजारे के साथ जो किया था और बाद में वो ही एक्सपोज हो गया, वो सादी सादी कार में फिरने वाला आज मर्सिडीज में घूमता है, 10 लाख के सूट में वो होटलों में रहता है, अपने होटल अपने घर में बड़ा बड़ा बंगला बना के करोड़ों का ये करता है, ऐश करता है। सारी बातें, जरांगे भी आज एक दिखावा करने वाला आदमी है, वो उसका एटम बॉम्ब फूट जाने वाला है। यू वेट फॉर दैट। आई एम टेलिंग मैक्सिमम 15 डेज। मुकेश गांधी साहब, आज क्या हुआ है कि सीबीआई के रेड लग गए सत्यपाल सिंह जी का, सत्यपाल मलिक के अलग अलग ऑफिस में, घर पर। तो कांग्रेस का कहना है कि बदले की राजनीति, यू आर प्लेइंग बदले की राजनीति एंड ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड, लोकतंत्र खतरे में है और मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, जिस प्रकार से कांग्रेस का आरोप है, यह तानाशाही है, कांग्रेस का कहना है। अब सत्यपाल मलिक का जो रेड है, तो क्या उस सिलसिले में, बिकॉज बोले कि मोदी साहब इज नॉट टेकिंग क्रिटिसिज्म लाइटली, इन डेमोक्रेसी यू हैव टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, तो सत्यपाल मलिक ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, उनके सब जगह रेड चालू कर दिया सत्यपाल। हाउ डू यू सी इट? डू यू सी द कांग्रेस वे कि लोकतंत्र खतरे में है, एनफोर्समेंट एजेंसीज को गलत मिसयूज, सीबीआई का मिसयूज, एंड देयर इज नो डेमोक्रेसी। आप बोल नहीं सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, देयर वाज ओनली वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द मासेस। मुकेश गांधी, मुझे लगता है प्रदीप जी, राजीव जी, ये कांग्रेस जो कहते हैं कि एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एजेंसी का आज सही पैमाने में उपयोग कर रहे हैं, और जिनको भी एक्सपोज करना है, जितने भी करप्ट लोग हैं, वो सब करप्ट लोगों को बाहर लाने का काम अभी नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, इसमें उनका कोई मेलाफाइड इंटरेस्ट नहीं है। उनको पार्टी बढ़ाने के लिए किसी के ऊपर ईडी की या सीबीआई की या सीआईडी की या किसी प्रकार के निगम से उनको रेड लगाने का जरूरत नहीं है। वो क्रिटिसिज्म से घबराने वाला ये मर्द आदमी है, वो किसी की क्रिटिसिज्म से घबराता नहीं है नरेंद्र मोदी। मुकेश गांधी साहब, और एक आप सवाल क्या जानते हैं? हाँ जी, एक सवाल आपसे, बड़ा महीन सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने दिल से इसका जवाब दें, दिल से सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आप बहुत दिलेर आदमी हैं। हाँ, दिल पे हाथ रख के कहूंगा। सर आप ये बताइए, जो लोग भारतीय जनसंघ में थे 60s में, 70s में, 80s में, 80s में भी थे 80 में तो खैर भारतीय जनता पार्टी बन गई, 70s में जिन्होंने भारतीय जनसंघ के लिए काम किया, इतने वरिष्ठ लोग, खून बहाया, पसीना बहाया, पार्टी सिर्फ 2 सीट लेकर के आई वापस 1984 में, मुझे अभी तक याद है। माई वाइफ हु इज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, वी वर ऑल इन दिल्ली, तो मुझे अभी तक याद है 12 अशोक रोड पे
जो भारतीय जनता पार्टी का हेड ऑफिस हुआ करता था, अब तो खैर उनका बड़ा आलीशान कॉर्पोरेट ऑफिस बन गया है झंडेवाला पे, वो 12 अशोक रोड पे, मुझे अभी तक याद है कि एक बार 7:30 बजे के करीब, भाई सर्दी का मौसम था, हम लोग गए वहाँ पे एज यूजुअल देखने के लिए कि भाई जेपी माथुर साहब होंगे, विजय कुमार मल्होत्रा साहब होंगे, केदारनाथ सानी जी होंगे, कोई ना कोई तो होगा ही। आपको मालूम है बिल्कुल घुप अंधेरा था भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, अकेले एक किशन लाल शर्मा जी अकेले लाइट ऑन करके बिल्कुल वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं, सिर्फ 2 MP जीतने के बावजूद। और 2 MP जीतने के बाद वहां पर कोई प्रेस वाला आ नहीं रहा था। किशन लाल शर्मा जी ने कहा, राजीव आप लोग सबसे पहले हैं जो यहां पर आए हैं, वी विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। वैसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया। यहां महाराष्ट्र में भी वही स्थिति थी, और यहां पर आपने भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 2 बार रहे मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण साहब को राज्यसभा की सीट दे दी, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। आप खुद सोच के बताइए सर, जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, बताएं मुकेश गांधी साहब। और दूसरी तरफ मिलिंद देवरा साहब वो भी राज्यसभा में चले गए, एकनाथ शिंदे सेना की तरफ से, शिवसेना की तरफ से। सारी उम्र जो कांग्रेस में रहे, परिवार कांग्रेस में रहा, एक बार मंत्री बने और अभी ट्रेजरर थे AICC के, उनको भी राज्यसभा में भेज दिया। तो ये ऊपर से जो पैराशूट हो रहे हैं, इससे आपको लगता नहीं है कि जो अंदर के जो पार्टी वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, बताएं सर दिल से। मैं बीजेपी के कई ग्रास रूट के कार्यकर्ता से लेके नेताओं के भी संपर्क में हूं जी। आप जो समझते हैं ऐसा किसी को फीलिंग नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक बहुत ही सीधी लाइन है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो भी काम करते हैं वो सोच के करते हैं, समझ के करते हैं। और ये बावनकुले ने भी उनके एक वक्तव्य में कहा था, राजीव जी, कि जहां भी हमको स्पेस है, कि जहां हमारे एरिया में जहां स्पेस है, वो स्पेस भरने के लिए हम दूसरी पार्टी के आए हुए अच्छे लोगों को हम स्वीकार करते हैं। आने वाले बहुत है, पर उनमें से सिलेक्टेड लोगों को हम लेते हैं। दूसरी बात मैं कहूं कि अशोक चव्हाण जो है वो सचमुच बीजेपी में आए तो मैं समझता हूं आज तक वो कौरव सेना में थे, अभी उनको पांडव सेना में आने का जो उनके दिल की जो इच्छा थी वो पूरी हुई है। वैसे ही मिलिंद देवरा जो है, वो मिलिंद देवरा भले मुरली देवरा के सन है, पर उसकी थिंकिंग, उसकी कल्चर, मेरा दोस्त है, वो पूरी बीजेपी माइंडेड है, पूरे हिंदुत्ववादी उनकी विचारधारा है। तो इनके कारण ये जो दोनों का सिलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, मेरा ये स्पष्ट मानना है। क्या बात है, क्या बात है। You are a better spokesperson of the BJP than the BJP spokesperson. Very frankly speaking. चलिए, मैंने आपको कहा था दिल पे हाथ रख के बोलिए, आपने फिर भी दिमाग से ही जवाब दिया। मैंने दिल से कहा है, मैंने दिल से ही कहा है भैया। मैं दिल से कहता हूँ, सचमुच में कहता हूँ। हाँ, एक बात है, एक जमाने में शिवसेना में ऐसा सिलेक्शन होता था, बाला साहब ठाकरे जी के टाइम में, वो हमारी क्या लेडी थी, जैन क्या नाम था उसका, जब लिया चंद्रिका केनिया, अभी चंद्रिका केनिया की बात कर रहे हैं, चंद्रिका केनिया, और अभी जैसे ये दिल्ली की हमारी ये जो इनको राज्यसभा में बनाया, ये काम बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी ने स्टॉलवर्ड लोगों को लिया हुआ है भैया। जो शिवसेना में हुआ ऐसा काम यहां नहीं हुआ है बीजेपी में। मैं बीजेपी के साथ पार्टी में हूं नहीं, पर बीजेपी के साथ में हृदय से जुड़ा हुआ हूं, और उनके फील्ड वर्कर के साथ में और सबके साथ में मैं कांटेक्ट में हूं। मैं अमित शाह जी की भी गुड बुक्स में चंद्रिका केनिया, संजय डालमिया, प्रतीश नंदी, इन सब लोगों को बाला साहब ठाकरे ने राज्यसभा में भेजा। जी हाँ, उनका शिवसेना में तब बहुत असंतोष था, मैं उस टाइम में शिवसेना में था, बहुत असंतुष्ट हुआ था। ऐसा वातावरण आज बीजेपी में नहीं है। मैं इसलिए कंपैरिजन आपको देना चाहता हूं। आज की तारीख में ऐसा कंपैरिजन बीजेपी नहीं। चलिए, अब आप ये बताएं चलते चलते, अब की बार 400 पार नहीं, 400 पार तो होगा ही, मोदी है तो मुमकिन है, मुकेश गांधी गारंटी। मुकेश गांधी साहब तो 600 पार करा देंगे। सर आप ये बताइए जब भी 600 सीटें होंगी, आने वाली हैं, डिलिमिटेशन होने वाली है, आई थिंक द फाइनल नंबर ऑफ सीट्स विल बी अराउंड 650।
क्योंकि हाँ। मैं उससे जा रहा हूँ, लोकसभा में जितनी सीटें हैं ना, जो नया जो लोकसभा का चेंबर बनाए हैं उसमें 660 सीटें हैं, तो आई एम अज्यूमिंग देयर बी एटलीस्ट 650 सीट्स इन द न्यू लोकसभा आगे जाके इन इन हाँ जी। इन 2029, जहां तक मुझे लगता है। सर, अब महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है, आप क्योंकि यू हैव बीन अ वेरी क्लोज पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ऑफ पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र, सर ये आरक्षण का जो मसला है ये कब खत्म होगा, कहाँ खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? हम तो सोच रहे थे कि भाई 20 फरवरी को हो गया, अब तो खत्म, चलो घर जाओ, काम हो गया। हर जगह पे सेलिब्रेशन हुई, एकनाथ शिंदे साहब ने खुद बोला जो मैंने वचन छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने दिया वो मैंने पूरा किया, और उन्होंने किया। देवेंद्र फडणवीस ने जो वचन दिया वो पूरा किया। लेकिन अब भी हमारे बड़े अच्छे मित्र जो हैं जरंगे पाटिल साहब, वो तो देखिए, वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं गांव में नहीं आने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, गाड़ियां नहीं आने दूंगा। मतलब ये क्या है सर, आगे जाके कहाँ खत्म होगा ये? मुकेश गांधी साहब, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जरांगे का धीरे धीरे चेहरा एक्सपोज हो जाएगा, उनको सपोर्ट देने वाले लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे, और आने वाले इलेक्शन के अंदर भी ये मराठा आंदोलन की कोई इफेक्ट नहीं होगी। और हमारी जो युति है शिवसेना शिंदे जी की, बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की और अजीत पवार की, एनसीपी की, ये बहुत बड़ी मेजोरिटी से पहले तो लोकसभा में 45 की 45 सीट जीत के लाएंगी। क्या बात और है इनका ओहो, हाँ, जबरदस्त। और इनका गुजराती में कहेंगे नो भुक्को बोलाई, जैसे इनका एकदम ये हो जाने वाला है, भुक्का हो जाने वाला है, क्या बात है। कुछ नहीं आने वाले हैं। मगर गांधी साहब बारामती में और पश्चिम महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शरद पवार एंड फैमिली वर्सेस अजित पवार का जंग चालू हो गया, ये पोता भी आ गए, पुतना भी आ गए, इतने पूरे शरद पवार फैमिली एकदम से निकल पड़े हैं, और ऐसा लग रहा है कि अजित पवार अकेले पड़ गए पूरे फैमिली में। सुप्रिया सुले, फिर कौन कौन से कितने पवार निकल के आए, रोज एक एक नया पवार आ रहा है। बात यह है कि 54 में से 27 सीट्स आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये पश्चिम महाराष्ट्र। तो यहां पर पवार वर्सेस पवार फाइट कहीं तकलीफ ना पहुंचाए, कैसे देखते हो आप? नहीं, अजीत पवार का नाम ही अजीत है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है वो अजीत पवार है जी। और ये बात देखिए कि अभी उनके फैमिली, पवार साहब के फैमिली मेंबर में से ही वापिस एक आदमी, एक लड़का देवेंद्र के का उसका नाम है, कि वो पार्टी में जुड़ गया शरद पवार जी के साथ में। माने पवार साहब ने वापिस प्रूव किया कि मेरी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। उनको कोई नया लीडर, ग्रास रूट पे काम करने वाला उनको आगे नहीं बढ़ाया बारामती के लिए। बारामती में भी कई हमारे कार्यकर्ता है पुराने एनसीपी के, उनको कहीं आगे नहीं बढ़ाया, पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किया। इसमें अजीत पवार अकेले नहीं पड़ गए, पर अजीत पवार मजबूत हो गए हैं। अजीत पवार मजबूत हो गए, क्या बात है। हाँ, घर का एक होशियार और होनहार लड़का अगर काम करता है, कमाता है और अपनी क्षमता को परिवार को दिखाता है, परिवार को आगे बढ़ाता है ना, तब परिवार के लोग उसको अंदर से पूरा सहकार देते हैं। आज बारामती का पूरा जो विस्तार है पश्चिम महाराष्ट्र का, हम देखेंगे पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में अजीत पवार के नाम की लहर चल रही है। और अजीत पवार इतना बड़ा परफॉर्मेंस देंगे, मैं पार्टी में हूं इसलिए नहीं कहता हूं, पर मैं वहां जाके मैंने पूरा दौरा किया है, ग्रास रूट पे लोगों को मिला हूं मैं, और आप देखना कि अजीत पवार जी विल स्कोर लाइक एनीथिंग। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल सर। तो आप प्रदीप जी का सवाल जो था उसका भी जवाब दे दें, इस बार 400 पार? हाँ, 100%। 400 पार एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए, क्योंकि आर्टिकल 370 रिपील किया, हटाया, इसलिए बीजेपी के 370। यस, 370 के ऊपर जाएंगे बीजेपी इटसेल्फ अबव 370 और 400 पार। Yes. मुकेश गांधी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे ऑफिस में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवा, जय भवानी, जय जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Right, that was of course Mr. Mukesh Gandhi, our